अंजना साइमन जी, शिव गुरेजा, मंगला मुखी जी, देविका देवेंद्र जी। इससे पहले कि मैं कलकी जी को उनके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करूं, मैं दो शब्द उनके बारे में कहना चाहूँगी। कलकी सुब्रमण्यम एक ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता, लेखक, दृश्य कलाकार और कवि हैं। कलकी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सहोदरी फाउंडेशन नाम की संगठन की संस्थापिका हैं। एक प्रतिष्ठित वक्ता होने के साथ साथ आप 3 शानदार पुस्तकों की लेखिका भी हैं, जिनमें से एक अंग्रेजी में और 2 तमिल में है। Many of her articles and poems have been included in many academic curriculum in India and published in many literary magazines internationally. Her poetry has also been translated into German language. She has won several awards for her activism, art and literary contributions. Before we begin, मैं बताना चाहूँगी कि हर वक्ता के पास 8 से 10 मिनट का समय है. So I request Kalki Subramaniam ji to kindly make her opening remarks. It is such a vibrant afternoon because we have a LGBT panel. A panel full of voices that need to be heard, that need to be written, that need to be amplified. This afternoon is going to be one of the most important afternoons. Why? Because at a time when the world, especially the West, is embracing for erasure of the transgender identities, especially we see in parts of Europe and parts of America, where transgender identity, transgender survival has become a question. This literary topic and conversation on the LGBTQI writings in the 21st century makes a very important mark. Literature has always changed our society, our world. Whether it's the Bible or the Dhammapada or the Bhagavad Gita or the Quran, literature, words have changed our civilization, created religion, created revolutions, and enhanced human society for better. On that line, our LGBT community, which is one of the most marginalized and which has been having our own voice only for the past 15 years, this becomes an important moment for us. And this moment is created by Sahitya Academy. We, as queer writers, trans writers, and scholars, we are proud to be here speaking at the Sahitya Academy because it's history. And each one of us, every transgender person in this country and around the world, goes through enormous struggles. Rejection by families, discrimination in workplace, discrimination in the society, exploitation, and beyond that, a lot of challenges. But mostly our stories have been written by other people, writers who are not LGBT mostly. There's nothing wrong with that because their perspectives are important, but what is more important is our own narratives, the authentic narratives. Because my life, only I can write it 100%, truthfully and authentically. So each of the panel members here are all very talented, but apart from the talent, they are all vibrant writers, vibrant scholars, vibrant personalities doing a lot of work for the empowerment, upliftment and the rights of the transgender community in India. And you will hear all of them shortly, and I'm really honored to be hosting all the writers and scholars of today's evening. There are new writers from the LGBT community, and then we have somebody like A. Revathimma, who actually published the first memoir from the transgender community, The Truth About Me.
and she is also the first book publisher, book writer. Her Tamil book, Unarvum Uruvamam, was the first book written by a transgender woman in India. So has acknowledged our diversity, and literature will make a future for us. Our struggles and triumphs, everything needs to be noticed, everything needs to be documented, and there is nothing better than literature that can document it. Every life matters, queer life matters, LGBTQI life matters, transgender people's rights matters. And I'm extremely proud and honored to be chairing this session. And I look forward to each and every one of us on the dais, because you're all vibrant, and the audience, I'm sure, will love your speech and appreciate it. And once again, thanks to the Academy, and thank you. Plays which are staged regularly. Her name has been on the display at the Butler Library, Columbia University, with the likes of Maya Angelou and Toni Morrison. Revati ji. तमिल में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मैं तमिल में बात कर सकता है, लेकिन आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ हिंदी में बोलने के लिए। 21 सेंचुरी में ट्रांसजेंडर समुदाय का किताब स्वयं ट्रांसजेंडर लोग द्वारा लिखता है। कहानियों में ट्रांसजेंडर लोगों की चर्चा कहानियां शामिल है। आत्मकथा, लघु कथा, सामग्री, साहित्य में ट्रांसजेंडर, पुराना कथा में ट्रांसजेंडर बहुत समय में शोध इवन करता है। सारे ये पढ़ने के लिए नहीं होता है, अपना भाषा में मैं बोल देंगे। ट्रांसजेंडर के बारे में कुछ ट्रांसजेंडर जो लिखा है वो किताब आया, और बॉडी और कहानियां का कोई किताब आया, वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। योड़ा ब्रश ने वो पब्लिश किया है 2005। और मेरा ऑटोबायोग्राफी द ट्रूथ अबाउट मी 2010 में पेंगुइन में छापा है। उसके बाद वो सेमिनार तो इंटरनेशनल लेवल पर मैं जाती थी, वहाँ पर सब लोग पीएचडी कर रहा था मेरे बुता के ऊपर, और एमफिल कर रहा था। खाली फिमिचू में ट्रांसजेंडर का बारे में कर रहा था। जब भी बच्चों को टीचर को मैं सिखाने दिया है, क्यों मैं फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर के बारे में क्यों आप नहीं सोच रहे, सब मेल टू फीमेल ट्रांसजेंडर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं। अब मेल टू फीमेल के बारे में भी आप रिसर्च करना, उसके बारे में भी आप लोग पीएचडी करना करके मैं मुद्दा रखा है। अभी 21 सेंचुरी में ट्रांस वुमेन, ट्रांस मेन लोग जाति किताब लिखने के लिए शुरू कर दिया, लेकिन हमारा साहित्य में कोई भी कड़व करेगा वगैरह के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर सब लोग लिख रहे हैं। जो मैं 3 किताब लिखा है, उसके बाद मैं कलाकार बंगी में, थिएटर आर्टिस्ट बंगी में, क्योंकि लोगों को जास्ती किताब नहीं पढ़ता है और पूरी किताब पढ़ने के समय ले जाता है, लेकिन पूरी किताब से थोड़े से एक स्क्रिप्ट बेल्ट को ड्रामा करेगा तो कैसा लगता है, मैं इसी में सोची थी। और कुछ तो पहले मेरा आत्मकथा के मैं सोलो परफॉर्मेंस किया था, लेकिन वो स्क्रिप्ट नहीं था, मेरा माइंड में क्या आया वो खुद बोला मैं। फिर अभी ये साल में वो किताब में पब्लिश किया है, आरंगेरी वेले Tamil Arangeti Vellimuri. And in Tamil, I mean in English, it can be translated into the pure language that is premiered, the pure language that is shown to the world for the first time, the pure voice. That's what is the literary translation. Thank you. Thank you so much. पूरी एक किताब से कैसे एक छोटी सी स्क्रिप्ट लेको ड्रामा पढ़ना है, मैं कोशिश किया है। 2001 से मैं शुरू किया है।
लेकिन स्क्रिप्ट नहीं लिखा है। खुद मेरा ऑटोबायोग्राफी, इसलिए मैं ऐसे ही प्ले करके गए मैं। बाद में 130 शो हो गया, आप में स्क्रिप्ट नहीं हो तो कैसे चलता है। इसलिए मैं लिखने के लिए लास्ट ईयर में शुरू कर लिया मेरा स्क्रिप्ट को। और इसके साथ साथ पेरुमाल मुरुगन ऐसा बड़े बड़े राइटर लोग मेरा ड्रामा देखा है, वो ड्रामा के बारे में आर्टिकल भी लिख दिया है। वो आर्टिकल ने ये किताब में अभी 2025 में पब्लिश हुआ है। मैं आज आपसे ये किताब से मैं पढ़ने जा रही हूँ, मेरा स्क्रिप्ट कैसे आप सुनना। पूरी टाइम मिलता है कि मुझे पता नहीं, परफॉर्मेंस का 40 मिनट का टाइम है, लेकिन मैं 5 मिनट्स में मैं पढ़ रही हूँ। मैं रेवती, आपको सबको देखने के लिए तमिलनाडु से आया हूँ। कैसे है मैं जो पहना साड़ी, अच्छा है क्या? अम्मा दादी का जमाने में वो ऐसी साड़ी पहन को खेती में जाकर काम करती थी। अभी का खेती में काम कर रहे हैं, बारिश नहीं है, कावेरी में पानी भी नहीं है, खेती का भूमि सब बिल्डिंग बन चुका है। हाँ, वो ऐसी साड़ी पहनना माँ दादी का जमाना में चला गया। मैं साड़ी पहनने के लिए कितना दुख उठाया आपको मालूम है? दिंडीगल में मारियम्मा अब्बा पूना से, बंबई से, दिल्ली से ट्रांसजेंडर लोग सब लोग आएगी। भगवान को मन्नत कर को सिंग करता था, डांस करता था। घर में किसकी भी मालूम पड़ने से बहन का कपड़ा लेको हम भी दिंडीगल चले जाना। बड़े लोग को देखेंगे तो नमस्कार बोलना है, अपना भाषा में पाँव पड़ती अम्मा, पाँव पड़ती दादी, पाँव पड़ती अक्का। जीते रहो बेटा। कौन सी गाँव बेटा तुम्हारा? नामकल माँ। उनकी सब देखेंगे तो चच्चा अमृत के तरीके दिखता था। आश्चर्य हो गया मेरे को। फिर उनके पास पूछा है, आपका तरीका है, मैं भी साड़ी पहनना है। अरे किन्नर का घर में आपको साड़ी पहनना पूछ रहे, चलो बेटा वो रूम में जाको साड़ी पहन के आ। मैं साड़ी पहन को सपना देख रही थी। स्कूल को चक्कर कर को एमजीआर सरस्वती सिनेमा देखा ना, वो वाला घर से बाहर निकाला है। आगे आपको देखने के लिए औरत का तरीके दिखते गए। हाँ दीदी, उनको देखेंगे तो वो तमिल सिनेमा में वो हीरोनी का नाम भूल गया ना, हाँ रेवती, उनकी तरीके नहीं है। आवा देखने के लिए सेम ऐसी है रेवती करके बोलने से मेरा मन में 1000 बटरफ्लाई जा रहा था। बहुत नाच भी आ रहा था मेरे को। फिर बाद में रीत डाल रहा था मेरे को, मेरा गुरु का नाम पे। रीत डालने के बाद चपाले कर रहे थे सब लोग ऐसा। मेरे गुरु ने बोला, यही तुम्हारा गुरु है, तुमको अच्छा पूरा देखने वाला यही है। इसकी बात उनकी बात सुनकर चलना है। हाँ, कैसे स्कूल में टीचर हम लोग को पाटा लेती है, कैसे पिताजी बच्चे लोग क्या चाहिए वो सब ला के देते हैं, कैसे माँ बच्चा को दूध देते हैं, ऐसे ही मेरा गुरु भी मेरे को कैसे चलना है, कैसे साड़ी पहनना है, किससे कैसे बात करना है, क्या काम के लिए जाना है, वो सब हमको सिखाता है। बड़ी गुरु ने बोला था, कल जमात है, तुम दिंडीगल में सो जाओ। मैं उसी दिन दिंडीगल में सो गया। बाप रे बाप, कितना गर्मी है, कल तो जमात है, जल्दी में उठना है। हाँ, ये पेटीकोट नाड़ा को मैं बहुत टाइट बांध लिया, उधर बहुत चल रहा है मेरे को। लूज करके देखेंगे तो पूरी रेड कलर का निशानी पड़ गया। सांस लेने के लिए नहीं हो रहा है, वो दिख के पूरी पसीना पसीना निकाल रहा है। हाथ लगा को सोचलामन இருக்குது। आपको मालूम है, मैं घर में जट्टी भी बनियान में डाल के सो रही थी। आज औरत का तरीका है, साड़ी के साथ मैं सो रही हूँ। एक दिन में इतना मुश्किल बोलेगे तो औरत लोग जिंदगी में कैसे ये कपड़ा पहनती मुझे मालूम नहीं है। हाँ, अपने बड़े लोग बोले, औरत लोग रोड में चल के आने से अपोजिट में मर्द आएगा तो सिर को ऐसा करके जाना है और पाँव के ऊपर पाँव डाल कर आदमी के साथ नहीं बैठना है। आदमी से औरत बनने के लिए मुश्किल है और औरत का तरीके जीने के लिए मुश्किल है। आज के लगता है रेशमा प्रसाद जी।
रेशमा प्रसाद बिहार में ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता कवि और लेखिका हैं। वे दोस्ताना सफर की संस्थापिका हैं, जो ट्रांसजेंडर समुदाय आधारित संगठन है जो LGBTQIA+ विशेष रूप से ट्रांसजेंडर महिलाओं और दलित समुदायों के लिए काम करता है, और ट्रांसजेंडर आधारित स्टार्टअप नाचबाजार.com प्राइवेट लिमिटेड जो बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। Reshma ji is an expert member of the National Council for Transgender Persons, Government of India, LGBT committee member in Niti Aayog. Reshma delivers lectures in colleges and schools and is nominated as brand ambassador by the Patna Municipal Corporation. Reshma Prasad ji. जिंदाबाद साथियों, ये मेरे लिए अवसर है कि मैं इन मुद्दों पे मुखर तरीके से बात करते रही हूँ साहित्य में। तो जिस तरीके से रेवती अक्का ने शुरू किया, कालकी जी की अध्यक्षता में हमें ये मौका मिला है, और हमारे गार्जियन समान श्रीनिवास सर है जिन्होंने इसको शुरू किया जब कलकत्ते से चल के, और आज हम दिल्ली में हर वर्ष इस जगह को आप लोगों के बीच में पहुंच करके आते हैं। ये अवसर होता है आवाज़ का, हमारी लेखनी का, हमारी बातों का। ये बहुत ही अच्छा अवसर होता है। परंतु जब हम इस तरीके से लिखते हैं LGBTQ, तो क्या ऐसा होता है कि किसी महिला मंचों पर लेस्बियन साथियों को बैठाया जाता है? क्या ऐसा होता है कि क्या पुरुष साथियों के साथ में क्या कोई गे पर्सन्स को बैठाया जाता है? इट्स आइडेंटिटी बस कन्फ्लिक्ट एंड एक मिथ है कि ये यौनिकता और लैंगिकता को एक मंच बना करके भारत में प्रेषित किया जाता है। और ये शब्द और स्पेक्ट्रम कहाँ से आया? हमारी किताबों में क्या लिखा हुआ है? हमारे साहित्य में क्या स्थिति है इसकी? इस पे चर्चा आवश्यक है। और ये चर्चा जब करते हैं तो बहुत बार हम सहम से जाते हैं कि आगे कैसे बात करें, किसको अपना एनिमी बनाए और किसको अपना दोस्त बनाए। क्योंकि साहित्य की जब बात होगी, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर और जो ऐसे व्यक्ति जो अपने जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ऐसे तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में 72 तरीके के शब्दों का उपयोग होता है जिससे लैंगिकता को स्थापित करने की बातें कही जाती हैं। लेकिन यौनिकता भी 55 तरीके की है और उसको भी इसी तरीके से स्थापित की जाती है। लेकिन प्रतिबिंबित करने वाले, स्थापित करने वाले व्यक्तियों को भी हमारे साथ बैठाया जाता है। ये कहीं से भी गलत नहीं है, बट इट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। आप एक शब्द सुनते हैं, हिजड़ा। ये शब्द का क्या मतलब है? आप सोचते हैं जब आपके यहां फारसी शब्द आए, उसके बाद से ये शब्द सभी के जिह्वा पर आ गए। और आप अगर 5 साल के बच्चों को भी अगर देखेंगे या किसी बड़े साहित्यकार की किताबों को देखेंगे, इस शब्द को एकदम लिखते हैं। वो चाहे हिंदी के लिखने वाले हो या गुजराती लिखने वाले हो या कोई भी ऐसी भाषा के लिखने वाले हो। जब मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूं, मैं कह रही हूं कि आप सिसजेंडर व्यक्ति हैं, आप समान, आप अपने यौनांग के समान अपने आप को प्रेषित कर रहे हैं और मैं अपने यौनांग के विपरीत जाकर के प्रेषित कर रही हूं। तो हमें क्या हमारी यौनिकता के साथ में इस तरीके की मंचों की शोभा बनाना, ये क्या महिलाएं इस तरीके से अपनी सभी यौनिकता के व्यक्तियों की पहचान के साथ में बैठते हैं, चर्चा करते हैं। ये चर्चा सभी को बराबर तरीके से करने की आवश्यकता है और लिखने में भी इस तरीके से आने की आवश्यकता है। क्योंकि जब शब्दों की बात करें, उसका यौनिकता क्या है, ये दृश्य वो अपने से व्यक्त कर रहे हैं।
वो अपनी किताबों में कर रहे हैं, अपने जीवन में कर रहे हैं। यदि वह नहीं कर रहे हैं तो कोई किसी से नहीं मतलब है, क्योंकि वो महिला और पुरुष है। लेकिन हम व्यक्त करें या ना करें, जिस समय ये सोचते हैं कि हम शरीर के विपरीत जाकर के अपने आप को स्वीकार करें, उसी समय से हमें इस संघर्ष से जीना होता है। ये चैलेंजेस को कैसे हर एक जगह पे लोग समझ पाएंगे कि दैट्स आइडेंटिटी, लैंगिकता की जो पहचान है, उससे कैसे मंचों को बनाना और लेखनी में ले जाना है। जब उर्दू की बात आती है, फारसी की बात आती है, भारत में बात आती है, तो 1200 कुछ 47-48 या इसी के आसपास की बात आती है। और उसके पहले क्या पहचान थी, क्या कौन से शब्दों का उपयोग होता था? अभी की किताबों में जो पुरस्कृत किताब है, वहां पे भी ताली, घुंघरू, मतलब इस तरीके के शब्दों का उपयोग हुआ है कि सब किन्नर समाज, चैलेंजिंग। साहित्य और साहित्यकार लिखते कैसे हैं और लिख क्या रहे हैं, क्या उन्हें ये जानकारी और गुण तरीके से पता है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा है कि वो लिख करके ले आ रहे हैं लोगों के बीच में, कि मुद्दे आ रहे हैं। लेकिन मैं कहूं कि मैं यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तियों को या यौनिक विविध व्यक्तियों को समर्थन करती हूं, उनका सहयोग करती हूं, तो मैं एक लैंगिक विविध व्यक्ति हूं, इसलिए यौनिक विविध व्यक्तियों के साथ ही साहित्यिक भी चर्चा करनी है। और नॉन बाइनरी पहचान, तो जो बाइनरी पहचान को प्रतिबिंबित करते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि हम यौनिक अल्पसंख्यक विविध व्यक्तियों के साथ में हमारा कोई संपर्क भी स्थापित है। और इसे कैसे स्थापना की स्थितियों में, कि मतलब भारत में किसने पहली ऐसी किताब लिखी, पुस्तक लिखी, और कौन ऐसे लेखक रहे जो अपनी यौनिक अल्पसंख्यक विविध पहचान को सामने लाए हो और उन्होंने लिखा हो और लोगों के बीच में गया हो, या कोई लैंगिक विविध व्यक्ति लिखा हो और पहुंचा हो। क्योंकि अगर धार्मिक रूप से पहचानों की बात करें तो यौनांगों की तलाश धर्म के आधार पर अर्धनारीश्वर का नहीं होते हैं। विष्णु से मोहिनी जो जाते, उनका भी यौनांग नहीं कोई पता करते हैं, और उनकी यौनिक क्रिया भी हम नहीं पता करते हैं। हम इला सुतम्मेना की बात करते हैं, उसके भी यौनांग और यौनिक क्रियाओं की बात नहीं करते हैं। ये कामसूत्र में है, लेकिन क्यों नहीं यौनिक विविधता को लेकर के लैंगिक विविधता के साथ में जोड़ा गया? ये है संस्कृति, और इस संस्कृति को समझना लोगों को आवश्यक है। और जब आप बात करते हैं विविधता की, तो उस विविधता को किस तरीके से लेना है? क्या महिलाओं की यौनिक विविधता को किस तरीके से हम लेते हैं, पुरुषों की यौनिक विविधता को लेते हैं? हम नहीं कहते हैं कि बांट दो, लेकिन सम्मान की बात है कि व्यक्ति है जो खोजता है कि ये महिला लेखकों का मंच है, ये पुरुष लेखकों का मंच है, या बहुभाषी लोगों का मंच है। लेकिन हम अगर खोजें कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का मंच है, तो लेखनी ही नहीं है। जो शब्द फारसी से होकर के आए, वो हमारे जीवन का पहचान सभी जगहों पे है, और जो शब्द है हिंदी के, उसे जीविका पार्जन का पहचान बना दिया गया, और इसे लिखा भी गया। और हमारे लेखक इस कृतित्व पे बहुत लोगों के बीच में मतलब सेलिब्रिटी होते हैं कि हम फलाना और हमारी फलाना पहचान है। मैं कहती हूं कि अभी तो लिखना बाकी है कि शब्दों का प्रयोग कैसे हो, और उसे कैसे लोग कृतित्व पे ले करके जाएं, तब ना हम चर्चा करें।
तो अभी इस पे कार्य करना अभी बाकी है और यौनिक विविधता व्यक्तियों के कार्य जो है वो अपने महिला पुरुष पहचान के आधार पर उन्हें बहुत सारे मंच जगह सब कुछ मिलते हैं, लेकिन कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति और उनके यौनिक लैंगिक विविधता की बात आती है तो उसे इस तरीके से प्रेषित किया जाता है। तो इसे बदलने की आवश्यकता है। मैंने इस पे थोड़ा किताब लिखी है, भारतीय वाङ्मय एवं कालक्रम किन्नर दर्शन, और एक और कवि पुस्तक हमने लिखी है, सामाजिक समरसता किन्नर समुदाय। क्योंकि किन्नर जो शब्द होता है किंतु नर की बात होती है, लेकिन उसे अलग अलग तरीके से प्रेषित किया जाता है, अपनाया जाता है। इसे बदलना आवश्यक है, तभी ये संभव होगा कि हम ट्रांसजेंडर या लैंगिक विविध व्यक्तियों के कृतित्व पर चर्चा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाशित हुई है। उनकी रुचि औपनिवेशिक ऐतिहासिक ग्रंथों में है, जिसमें अपराध के विमर्श पर विशेष ध्यान दिया गया है। His current projects seek to reconstruct the relationship of important figures such as Savarkar, Tagore and Gandhi with imperial court of law and penal systems. Across the Black Water, the Andaman Archives is his most recent book. Shri Akshay K. Rath. Recent development in India that our transgender people can tell their own story, especially in English. We have our liberal academia, liberal university, translation from publishers, and the court to thank. The government recognized transgender rights through social programs of late. The UGC, the establishment like these literary festivals, they paved this elaborate way. It took us more than a century. An undocumented struggle began with the implementation of the Criminal Tribes Act of 1871. That is when they criminalized transgender people in India. Our transgender people were criminalized. They were persecuted. Their property rights, right to live with dignity, were torn apart. Many were transported to offshore prisons, and we haven't spoken about this history yet. They were made invisible. The Indian freedom struggle movement denied them a proper space. It denied them a vocabulary. It denied them their rightful existence. The free India that sought to recreate itself remained busy with nation-building work. The free India hardly gave them a scope to vocalize their thoughts in the initial decades. They got a forbidden space in the movie industry. So what happened thereafter created a tradition, and the tradition began right over here. A tradition that's ever growing and ever changing. So when Revati and Lakshmi, they published their sensational autobiographical narratives and established first-hand narratives in the discipline. Another tradition was being documented in the liberal academia. I'll speak a little bit about it. I will provide two examples. The first one is a creation tale, and the second one is the historization of the community in rural India. I shall begin with a creation tale. One of the creation tales was spoken by Revati in her first autobiographical fiction. It was also spoken about A.K. Ramanujan, that was also repeated in Lakshmi. But there is another tale that I could gather from a field work. In the beginning, there was darkness. It is from the darkness that the Creator God came into being. The Creator God had embodied within him both feminine and masculine principles. Aimlessly did he wander above water, and then came his finest sense of consciousness. He thus created the world. He created the first men, the first women, and segregated them according to their sexes. In his creation, those who possessed both feminine and masculine principles at once were closest to the Creator God's heart, because they were the fortunate ones displaying the Creator's traits. They, at once male and female and still beyond sex, and hence pure, possessed the power to bless and curse. An insatiable jealousy
came to the heart of males and females, and the fortunate ones were looked down upon by those who were relatively distant from the Creator God. Gradually, they worshipped the primordial Mother Goddess and identified themselves with the feminine principle, who in turn had identified herself with nature and other creations. This particular tale comes from here. This is where I begin. So it begins the creation story of one of the transcendent tales in Sambalpur, Odisha, where thousands of hijras, we call them hijras within quotes, assembled to perform during Lord Shiva's ritual marriage to Sati's incarnation Parvati every summer. The festival will start now. They sing, they dance, and they perform in praise of the Lord, who is performing a second marriage to produce an heir, who in turn would be a savior in an otherwise irreligious world. One of their songs centralizes their hopes and impediments. This is in Sambalpuri, but I translated it from the fieldwork. And quote, "We came to the world and saw, the world is not ours, the world is finished. We came to the world and realized, started forth, unquote." Where is the revolution? What is the purpose? When we move forward hearing this elegant song, Babar is without Babri. The transgender figure then becomes the prototype of a Gopi girl or Mirabai looking for Krishna from the other shore of the Yamuna. This movement they term a woman in her eternal migration is without a tongue. Then comes Shankara dancing the cosmic dance. So many roles, so many episodes. It is this everlasting dance of the cosmic world. Should we not then term transgender narratives as an epic song about the world within the world? Since these tales and songs of the transgender community are not far from being influenced by biblical and the other mythical traditions, it is wise to term them as a literary hybrid of colonial expansion and modernism. More than that, just as folk narratives contain multitudes, transcender narratives possess the emblem of life and death, sorrow and happiness, identity and state of being, and they are intertwined. So apparently this integral motive that transgender narratives they seek to achieve while creating an alternative universe and gendered identity is that they unearth the hidden and buried life through their personal narratives, autobiographies, particularly by domesticating pan-Indian gods and the goddesses. If I have approximately 3 minutes to go, or all right. So in the second part of this tale, I shall wander. I get into the nationalist discourse where Gandhi speaks that he wants to be God's eunuch mentally first, and if he succeeds in this Brahmacharya Mahayajna, then he would become one physically also. However, the Mahatma did not speak about the transgender community directly. He internalized that there should be a feminine self within the Indian nationalist discourse. So my work has been to contextualize those transgender tales and transgender jokes and put them in the 21st century India, which are creating a history, giving a narrative to the history of struggle. Thank you so much. A doctorate in Christian theology on the topic, "Is Jesus a Hope for Transgender?" was highly appreciated by the university. संजना जी ने 90 से ज़्यादा कविताएं और 5 लघु कहानियां लिखी हैं। उनके आने वाली कृतियां हैं लाइफ ऑफ अ ट्रांस मैन एंड बॉलीवुडिया, ट्रांसजेंडर वर्सेस पेनफुल रियलिटी। दिल्ली विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ जुड़कर लिंग असंगति और सभी छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण पर वेबिनार्स और सेमिनार्स आयोजित करने के लिए संजना को यूजीसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक संसाधन व्यक्ति और विशेषज्ञ के रूप में भी नियुक्त किया गया है। संजना साइन। हो रही है वो जाग जाए, कृपया आप लोग सोइए मत, आपको तो बोर देखते हुए हम लोग बोर हो जाएंगे। अब तक हमारी आवाज सुनी नहीं गई है,
किसी ने भी सुनी है और साहित्य अकादमी ने जब ये मौका दिया है कि हमारी आवाज आवाम तक पहुंच सकती है, तो कृपया मत सोइए, सोने का मन होता है टहल के आ जाइए, इतना गंदा फील मत करवाइए हम लोगों को। और मैं यहाँ पे अपनी बात को कुछ कविता के माध्यम से स्टार्ट करना चाहूंगी। जीने की थी चाहत, I wanted to live, जीने की थी चाहत, जी ना सकी, एक उलझन थी मन में, कभी कह ना सकी, कहीं लिखा देखा कलम की सच्चाई को, कहीं लिखा देखा कलम की सच्चाई को, जो मैं ना कह सकी तो फिर लिखने लगी। होता यूं है कि कुछ लोग शौक में लिखते हैं, कुछ लोग अमर होने के लिए लिखते हैं, और कुछ लिख देते हैं कि सलाह और नसीहतें प्रदान कर दे दूसरों को। लेकिन कुछ लोग लिखते हैं जब वो बेबस होते हैं, जब वो बोल नहीं पाते हैं, जब वो बयान करने की हालात में नहीं होते हैं, तो वो लिख देते हैं। मैंने लिखना सीखा क्योंकि मेरी आवाज को सुनने वाला कोई हमदम और कोई साथी नहीं था। मैं अपने घर में ही एक अल्पसंख्यक व्यक्ति थी। मेरी माँ एक सिसजेंडर वुमन, मेरे पिताजी एक सिसजेंडर पुरुष, मेरे 2 बड़े भाई, घर में पूरी पुरुष सत्ता, पापा जी, 2 बड़े भाई और फिर मैं। ऐसे में जहाँ महिला मतलब मम्मी की आवाज नहीं सुनी जा रही थी, तो वहां मेरी आवाज का तो कोई मूल्य ही नहीं था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों का प्रथम बहिष्कार हमारे अपने घर से होता है और हमारी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। जब हमें कोई नहीं सुनता है तो हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। मैंने टुकड़ों में अपने आप को जन्म दिया, कभी रजिस्टर के पीछे तो कभी अखबारों के कोने में अपने आप को पैदा करने लग गई। कहने का मतलब है अपनी आप बीती, अपनी व्यथा को लिखने लग गई, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं लिख दूंगी तो कम से कम मुझे सब्र हो जाएगा। मुझे लगेगा कि कोरा कागज ये गूंगा है लेकिन बहरा नहीं है। जो कोरा कागज होता है साहित्यकार के लिए वो गूंगा बेशक होता है क्योंकि बता नहीं पाता है कि आपकी लेखनी कैसी है। वो तो साहित्य अकादमी पुरस्कार देके बताते हैं कि अच्छी लिखी या नहीं लिखी। अदरवाइज कागज जो होता है वो बिल्कुल गूंगा होता है लेकिन बहरा नहीं होता है। वो सुनता है और नोट करता है और आपकी सारी बातें अमर कर देता है। तो साहित्य से लगाव यूं होने लगा कि मुझे लगा कि मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रही हूँ, चलो कुछ लिख देती हूँ, मेरी बात जो है वो आवाम तक आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएगी। हमें टॉपिक दिया गया है कि 21वीं सदी में मैं किसी और लेखिका को नहीं जानती। बड़े बड़े नाम होंगे दुनिया में, लेकिन मेरे लिए मेरी कहानी, मेरी व्यथा, मेरी जिंदगी सर्वप्रथम तो वही बचाना मेरा मुख्य उद्देश्य था। मैं जीना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं जीऊं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, और इस खूबसूरत जिंदगी को अगर आपकी दकियानूसी सोच बुरा कर रही है तो मैं कत्ल करना चाहूंगी आपकी उस दकियानूसी सोच को, और मैं चाहूंगी कि मैं भी जी लूं। मैं जीना चाहती थी और मैंने अपने आप को प्रथम लेखिका के रूप में पाया। मैं अपनी कहानियों को, अपनी बातों को अपनी डायरी एंट्रीज के माध्यम से लिखने लगी। मेरा रोज का ये काम था कि मैं रोज स्कूल से जब घर आती थी तो एक कोने में अमरूद के पेड़ के नीचे बैठती थी अपने घर के बगीचे में। अमरूद का पेड़ था, गुआवा ट्री, और वहां पे बैठ के मैं अपनी डेली डायरी एंट्री लिखा करती थी। और मैं इसलिए लिखती थी क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी को बता दूंगी कि मुझे मोहब्बत हो गई है पड़ोस में रहने वाले लड़के से, तो मम्मी मुझे मार डालेगी। या ये बता दूंगी कि आज मेरी क्लास में किसी ने मेरे साथ में ऐसा कुछ मेंटल ट्रॉमा मुझे दिया है तो शायद मेरे पापा लड़ने लग जाएंगे। मुझे पता था मेरी आवाज को स्वीकृति कभी नहीं मिलेगी, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया डायरीज में। और मैंने क्लास स्टैंडर्ड 6 से मैं लिखना शुरू किया, और मैंने जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लिया तब तक मैं हर साल डायरी लिखती रही। आप सोचिए कि मेरे पास जितनी साड़ियां नहीं है उतनी डायरियां रखी हुई है मेरी कबज में, तो मुझसे बड़ी लेखिका कौन हो सकती है। मैं लिखती थी, अरे बजा के ये भी अच्छा है कि पास में जो सो रहे हैं वो थोड़ा जाग जाएंगे। धन्यवाद, आपके कलाम। तो हुआ यूं कि मैं
लिखने लग गई अपनी डायरीज को, और मैंने उन डायरीज को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। एंड लेटर ऑन व्हेन आई ग्रू अप, व्हेन आई स्टार्टेड रिवाइजिंग व्हाट आई रोट इन माय चाइल्डहुड, मैं कभी हंसती थी तो कभी रोती थी, कभी ऐसे बाहों में भर लिया करती थी अपनी डायरीज को, कह रही ये मैं हूँ, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बात कहने वाली। मैं आपको बताऊं, साहित्य की खूबसूरती ये होती है कि लिखने वाला खुद ही अपने आप को या तो इनाम दे देता है या खुद ही अपने आप को गालियां देता है कि तुमने क्या लिख दिया, इतना बुरा लिखते हो तुम। तो मैं लिखने के बाद में जब मैं बड़ी हो गई, जवान हो गई, खूबसूरत हो गई, तो मैं अपने उन बचपने को पढ़ने लग गई। मैं खुद ही प्रथम लेखिका बनी, मैं खुद ही प्रथम पाठिका बनी। मैं अपनी खुद की पाठक थी जो अपने आप को देखती थी। जैसे मेरी बहनें आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को संवरता हुआ देखती हैं, मैं अपने आप को साहित्य में निखरता हुआ देख रही थी। मैं रोज देखती थी। एक और सलाम आप लोगों को। मैं रोज देख रही थी अपने आप को संवरता हुआ, खिलता हुआ, और अपने आप को खुद ब खुद ही मैं बहुत बार साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार, दूसरे पुरस्कार दे चुकी हूँ। क्योंकि सच बताओ सर, मैं ही वो प्रथम लेखिका थी जिसने लिखना शुरू किया। मैं नहीं जानती थी बड़े बड़े नामों को। मैं एक छोटे से शहर के एक छोटे से घर में दबी कुचली सहमी हुई लड़की थी। मेरे पास में इतना रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चीजों को पढूं कि किसने क्या लिख दिया, कि क्या गे मैन है और क्या ट्रांस मैन है और क्या ट्रांस वुमेन है। मुझे नहीं पता था। मुझे तो पता था मैं मम्मी की प्यारी सी बिटिया हूँ। पापा के थोड़े से गुण मिल गए हैं मुझे बायोलॉजिकल, बट मैं हूँ मम्मी की प्यारी सी बिटिया। और मुझे ये लैंगिक पहचान, ट्रांसजेंडर और पोती, जनानी, अथवा जो भी कुछ हो, ये सारी भाषाएं मुझे कुछ भी नहीं पता थी, क्योंकि कौन सिखाता है। Did in your school time, any time your teachers talked about what is hijra, what does kinner mean, what is transgender? These were never the subject, never the words which were discussed on the dining table or in the school rooms. Never. Even teachers, their vocabulary was so nonsense. They never taught us what is queer, what is transgender, what is this, that. तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया कभी कि ट्रांसजेंडर कौन होता है, हिजड़ा कौन होता है, किन्नर कौन होता है। हम लड़की थे, मतलब मैं लड़की थी और मैं आज भी लड़की हूँ, और मैं जब मरूंगी तभी मैं लड़की बन के ही मरूंगी। मेरी कब्र के ऊपर भी लिखा होगा मिस ब्यूटीफुल संजना साइमन, क्योंकि मैं संजना ही हूँ। मरना था तो उस मुर्दा अभिव्यक्ति को मरना था जिसको आपने मुझे दिया था। मेरी स्वतंत्र अभिव्यक्ति में मैं एक महिला थी, महिला हूँ और पुरजोर महिला रहूंगी। और मेरा महिला होना ना सिर्फ मेरा अधिकार है, बल्कि मेरा महिला होना ये मेरा सौभाग्य है। जब मैं महिला होने की बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ उस त्याग की, मैं बात करती हूँ उस खूबसूरती की, उस ममता की। जैसे मैं पिछले साल में मैंने साहित्य अकादमी में कविता पढ़ी थी और कहा था कि माना कि हम बांझ वृक्ष हैं, तुम्हें फल और फूल नहीं दे सकते। माना कि हम बांझ वृक्ष हैं, तुम्हें फल और फूल नहीं दे सकते, पर हमें पास आके तो देखिए, हम आपको छाया और शीतल हवा दे सकते हैं। हम आपकी लाचारी में आपकी लाठी बन सकते हैं, हम आपको लकड़ी काठ दे सकते हैं। हमारे पास आके तो देखिए, हम आपको शीतल वायु दे सकते हैं। तो मैं बेशक बाझ हूं, लेकिन मुझ में ममता की कमी नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौंदर्य है कि मैं अपने अंदर उन सारी अभिव्यक्तियों को लेके चलती हूँ जिनकी आज समाज को आवश्यकता है। आज समाज में इंजीनियर और डॉक्टर्स तो बन रहे हैं, लेकिन समाज में इंसान नहीं बन रहे हैं। और मैं तालियां बजाना चाहती हूँ यहाँ मंच पे बैठी मेरी बहनें, ये इंसान है, ये वो इंसान की जात है। अभी भाई ने एक बात बोली, बाइबल का प्रसंग लेके आए कि आदि में परमेश्वर ने औरत और आदमी, एडम और ईव को बनाया। मैं बताना चाहूंगी आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। The first creation was human. और ह्यूमन से निकाल के खुदा ने एडम और ईव को बनाया। और ईव को जब बनाया तो ईव को कहां से बनाया? एडम के राइट हैंड साइड के रिब से। औरत कहीं और नहीं थी, एडम में ही थी। नर से निकली नारी संजना साइमन बनी है। नर से निकली नारी, नर से ही तो आदिकाल से नारियां निकल रही हैं। अगर नर नहीं होता तो पहला प्रोडक्शन हाउस ही नहीं होता। प्रोडक्शन हाउस जो था वो पहला नर था, फिर नारी बनी और फिर नारी ही प्रोडक्शन हाउस बन गई। बट फर्स्ट वुमेन वाज क्रिएटेड आउट ऑफ एडम।
तो मैं इस बात को बोलना चाहती हूँ कि हम सब लोग इंसान हैं, इंसान की शख्सियत को साथ में लेके चल रहे हैं, इंसानी जुबान को साथ में लेके चल रहे हैं। हमें मर्द और औरत की अब शिनाख्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, एक अच्छी औलाद है। मैं एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहती हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी और मेरे को घुटन महसूस हो रही थी बहुत ज्यादा, मैं जवान हो चुकी थी और मैं जीना चाहती थी, तो मैंने अपने घर में जब डिक्लेयर करा दैट आई एम अ ट्रांसजेंडर वुमन, आइडेंटिफाई मी एज अ वुमन, दैट society has given a name that is transgender woman, and I declared it in my house. So like मैंने बताया, मेरे पापा जी, मेरे 2 बड़े भाई, तो पुरुष सत्ता थी घर के अंदर, पुरुषों की बात सुनी जाती थी। लेकिन मेरे अस्तित्व का प्रथम चुंबन मेरे पिता ने किया, जो एक पुरुष थे। जब मैंने अपने घर में बताया कि मैं एक औरत हूँ, तो आपको पता है मेरे पापा जी ने मुझे बुलाया अपने पास और मुझे गले से लगा के कहा, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, तुम बहुत प्यारी बिटिया हो। मुझे अफसोस नहीं कि बेटा खो गया, मुझे अब खुशी है इस बात की कि मुझे वो बिटिया मिली है जो मुझे हर पल मेरी माँ के समान केयर करती है। मैं अपने पापा की माँ के समान उनकी केयर करती थी, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे अस्तित्व का प्रथम चुंबन मेरे पिता ने किया। मेरे को कभी भी पितृसत्ता से और पुरुष प्रधान समाज से कोई नफरत नहीं हुई, कोई मुझे बहिष्कार का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि पुरुष ना हो तो औरत को मोहब्बत ही कौन करेगा। तो मुझे प्रथम मोहब्बत जो परोसी वो मेरे पिता ने परोसी, मुझे बहुत प्यार किया और मैंने वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मैं दिल्ली जब आई तो मैंने फिर सुना कि एक बहुत बड़ा संसार है। छोटे से शहर बरेली में अभी भी मुझ जैसी बहुत सारी बहनें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की गांव देहातों में अपने आप को बड़ा अधूरा और अभागा महसूस करती हैं। वो ये सोचती हैं कि वही अकेली पैदा हो गई है इस दुनिया में। तो मैं भी सोचती थी मैं बिल्कुल अकेली हूँ, अभागी हूँ, मैं ही पैदा हो गई हूँ, मुझे ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन हुआ यूं कि जब मैं बाहर निकल के आई तो मैंने पढ़ा रेवती अम्मा को, मैंने पढ़ा कल्की जी को, मैंने लक्ष्मी जी की बायोग्राफी जो किसी और ने लिखी है मैंने वो भी पढ़ ली। उसके बाद मुझे मालूम चला कि अच्छा मतलब मुझ जैसे और भी लोग हैं, मैं अकेली दुनिया में अधूरी और अभागी नहीं हूँ। मुझ जैसे लड़ने वाले और मुझ जैसे योद्धा महारथी और भी इस दुनिया में मौजूद है। फिर मैंने इन सबको पढ़ा, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगी कि हमारे समुदाय में अभी भी लेखन की बहुत कमी है। अभी भी हम लोग जो है वो अपने आप को संवारने में लगे हुए हैं। हमारे समाज के अंदर इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतनी प्रतिस्पर्धा कि आज अगर कोई ट्रांस आगे बढ़ रही है तो दूसरी ट्रांस से उसका पैर पकड़ के खींच भी लेगी। इतना ज्यादा मतलब प्रतिस्पर्धा के दौर में हम लोग जी रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हम अपनी आवाज को वोकल करने के लिए सामने आए। अगर हम एक दूसरे से ही नफरत करेंगे तो हमारे समाज को कौन कब मोहब्बत करेगा। तो हमें मोहब्बत की आवश्यकता है। बस छोटी सी एक नज़्म है जिसको लिख के मैं आगे बढ़ूंगी। तुम जो हो वो होना आसान नहीं, तुम जो हो कल्की दी, तुम जो हो वो होना आसान नहीं, मुश्किलों के दौर में मुस्कुराना आसान नहीं। देखे यूं तो कई मुफलिस मुकाम, जिंदा दिली की अमीरी मिलना आसान नहीं। फाके पड़ते और लोगों को बिखरते देखा है, खाली पेट सुकून की नींद सोना आसान नहीं। तेरी जुल्फ के साये में जन्नत है मेरे यार, बिन तेरे ईद तो दूर अफ्तारी भी आसान नहीं। नरगिसी सुरूर है इश्क में ये माना, पर मैखाने में तेरे हुस्न के होश खोना आसान नहीं। फकत तेरी याद भुलाई नहीं जाती, पर मुस्कुराते हुए रोना आसान नहीं। नियत की वजू भी चलो कर लेते हैं, तेरे मोहल्ले में हुस्न ना दिखे ये आसान नहीं। पढ़े लिखो की महफिल है जमी, कोई मजनू की मोहब्बत का सबक सीख ले तो आसान नहीं। खुदा की कौम में सब मजहबी लोग हैं, इंसानियत करता कोई इंसान दिख जाए ये आज की दुनिया में आसान नहीं। तेरे घर की चौखट पर टंगा वो काला धागा, तेरे लबों के तिल पे मुस्ताक सा आसान नहीं। आप सबको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत मोहब्बत आप लोगों को मेरी तरफ से। यूं ही साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। Visiting expert for transgender community rights in Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, and gender sensitization expert in Rajasthan Police Academy, Jaipur, Devika Devendra ji. आनंद और आनंद की
हम फिर दोबारा मिले हैं, मिलने का कारवां फिर खत्म नहीं होता। हम हर रोज मिलते हैं और मुझे लगती है मिलने की आरज़ू कभी खत्म नहीं होती। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी साहित्य अकादमी, भारत सरकार की एक ऑटोनॉमस संस्था को, जिसने हम ट्रांसजेंडर साथियों को 1 साल बाद दोबारा से मिलाया, जिससे हम रूबरू हो सके आपसे और समझ सके साहित्य और लेखनी की वो छोटी छोटी किताबें जिन्हें हमने अपने दिल में और अपने अरमानों में सजा के रखा हुआ था। शुरुआत करती हूँ राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिखे हुए एक छोटी सी शेर से, जिसमें उन्होंने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना उस दिन मेरे दिल में आ गई थी जब मैंने लड़कों के कपड़ों का त्याग करके एक लड़की की साड़ी को पहन लिया था। सरफरोशी उस दिन आ गई थी जिस दिन मुझे लोगों ने कहा तुम करते हो, और मैंने बदल दिया कि मैं करता नहीं, मैं करती हूँ। तो नारित्व और नारी लेखन मेरी विशेष शैली है। जैसा कि साधना जी ने बहुत अच्छे से मेरे बारे में बताया, मैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की एक छोटी सी साधका हूँ और 18 वर्षों से भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक को साध रही हूँ। लखनऊ घराने से मैं आती हूँ और आचार्य लच्छू महाराज जी परंपरा का हिस्सा हूँ। तो फैज अहमद फैज साहब को हमने बहुत सुना है, वी हैव लिसन सो मच फैज अहमद फैज साहब। तो उनकी एक छोटी सी नज्म है तन्हाई, वो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ, इजाजत है। फिर कोई आया दिलेजार नहीं कोई नहीं, फिर कोई आया दिलेजार नहीं कोई नहीं, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों के ख्वाबीदा चिराग, लड़खड़ाने लगे ऐवानों के ख्वाबीदा चिराग। सो गई रास्ता तक तक के एक राहगुजार, सो गई रास्ता तक तक के एक राहगुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए मेरे कदमों के निशान, अजनबी राग ने, अजनबी खाक ने धुला दिए कदमों की सुराग। गुल करो शमाएं बढ़ा दो, गुल करो शमाएं बढ़ा दो, मैं और मीना और अयाग अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकम्मल कर लो, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकम्मल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई और नहीं आएगा, अब यहाँ कोई और नहीं आएगा। तो we are talking about this whole question of the landscape, the world landscape, at a global level. Well, for many decades, for many years, the Indian works, known works from our religious side, from the Gita and all its associated works, most of which have already been translated. I'm not going into that at all, because those have been translated over the years. We have come across people who have visited India, and they have been translated into Spanish from English versions, some of them from the Sanskrit versions, some from the Hindi versions, but most of them from the English versions. And there is no need for me to go into naming those. But at the same time, for example, Bhagavad-gita has been translated 3 times, by a very well-known Mexican scholar who has been in India many times, in many conferences, and also to study. He has been in contact with the academy also. Now, like that, many aspects of other aspects of Gita
pre-Gita and post-Gita writings have been translated. Now these are of course matters of the old days. Personally, I am not very interested in that aspect. I'm more interested, of course, in the contemporary, starting from let's say, from Tagore. Now, let me just mention that if, Tagore, why did he become so important in Latin America at the beginning of the 20th century? After the reception of the Nobel Prize. And even before the Nobel Prize, some of the revolutionaries which were fighting in Mexico, they were starting the revolution of Mexico. One of them, Francisco Madero, he was the leader of the par excellence of the revolution. But he first, how was he convinced that he was to join the revolution? He was convinced by a book that he himself wrote, Manual Espiritu. Manual Espiritu is nothing but a translation of that whole part of the Gita where Krishna is advising Arjuna to join the war. And it is someone else like Arjuna convinces him that you are going to, this is your duty. And this convincing of Madero is, let's say, the beginning of a spirit that tells us that we are present, we Indians, our own works are present in a most effective, concrete manner, not just in books, but in actual practice. And it is these, after he joins the war is fought, but he is killed, but is one literary personality in Mexico who, along with a group of friends from various Latin American countries, creates a group in order to bring out such translations. Now he is aware of the whole reality of they have gained because of the Industrial Revolution, etc., etc. But most people are so poor, and this poverty can only be removed by teaching the people, teaching the people what? That kind of a spirit which he combines from the spirit of our sacred books and Buddhism. And he